हाँ सही कह रहा है हनान के So randomness, बेसिकली randomness is like randomness, yes, exactly, disorderness of any system, randomness of any system. So entropy means entropy, yes, entropy. So beta, entropy means the randomness of any system. Randomness of any system. Okay, disorderness यानी कि। और फर्दर अगर मैं इसे इलाबोरेट करूं बेटा, तो आप यूं समझ लीजिए कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास आ, एक सिस्टम है लाइक दिस, ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में ये पार्टिकल्स है, राइट। लेट्स सपोज ये है, फिर ऐसा है, फिर ये है, ओके। और फिर इसी तरह के मेरे पास ये और भी पार्टिकल्स हैं, कुछ यूं करके मैंने इनको अरेंज किया हुआ है बिल्कुल एक वेल मैनर में। सो दिस इज ऑर्डर्ड। तो आप कहोगे इसकी जो एंट्रोपी है वो लो है, लो एंट्रोपी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास सेम बीकर हो, सेम कंटेनर हो, ओके, सेम कंटेनर हो आपके पास, मैं ये ले लेता हूँ, ओके। इसमें ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हैं। तो मैं कहूंगा ये डिसऑर्डर्ड है, ये डिसऑर्डर्ड है, और डिसऑर्डर्ड है जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी क्या है, हाई एंट्रोपी है, ओके। इसकी एंट्रोपी क्या है, हाई एंट्रोपी है, याद रखिएगा बेटा। सो अब हम करते ये हैं कि sir, एंट्रोपी I पढ़ने का had पहले। a यस, thing. I wanted to ask you something. It is not related to this topic. Can I ask? Abhi? यस, हम्म। Sir, I wanted to ask you, is it possible, क्योंकि I know कि lattice energy के सारे lectures upload हो गए और hydration वगैरह के भी, but is it possible if you can like make a playlist of all those lectures in order, like YouTube पे एक playlist बना ले, because I think it would be easy to access, because बहुत दफा like इतनी सारी videos में like वो like ओके ओके lectures wise उसको ढूंढना ओके मुश्किल हो जाता है. ओके इरफा, ओके ओके, आई Thank you, विल मेक sir. अ प्लेलिस्ट, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. अच्छा जी, ओके 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 जी। सो ये ऑर्डर्ड है, ये डिसऑर्डर्ड है, हाई एंट्रोपी है, लो एंट्रोपी है। अच्छा, द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी डिस्कस एंट्रोपी, लाइक व्हाट इज द यू नो उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि वी डिस्कस एंट्रोपी। सो बेटा रिमेम्बर, जनरली होता ये है कि we have to predict whether the reaction is spontaneous or not, whether the reaction is spontaneous or not. We have to predict this. So on the basis of enthalpy change, on the basis of enthalpy change, we can say that those reactions which are exothermic, those reactions which are exothermic are spontaneous reaction. ये एक मैं आपको एक मिथ बता रहा हूँ कि जनरली ऐसा ही होता है, इन एक्सोथर्मिक सिस्टम reactant releases energy, reactant releases energy, so then product is formed. So the ultimately the product has a lower energy, ultimately the product has a lower energy, you know, कि एनर्जी का लॉस हो गया, आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो गया। ऐसे ही होता है ना जनरली कि दोज substances having the less amount of energy, having containing a less energy, तो उनको हम क्या कहते हैं, दे आर स्टेबल, they are stable. So exothermic reaction are spontaneous generally because they are going towards the stability. तो हम कह सकते हैं कि भाई they are spontaneous reaction. But remember, we have some endothermic reactions.
we have some endothermic reactions that are also spontaneous, तो इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी चेंज इज नॉट अ फुल क्राइटेरिया बाय व्हिच यू कैन प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो ये कोई मतलब फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा टू प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। और और व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? बेटा, spontaneous reaction is the one which can start on its own, like they start automatically without any external force. Without any external force, they just start. So generally exothermic reaction does the same thing. Exothermic reaction does the same thing. Why? Let's suppose, इसको मैं यूं लिखूंगा कि generally generally exothermic reactions are spontaneous Before starting, I need to know what is meant by the term spontaneous. Reactions reactions which starts without any external force, or you can say on its own. They are called spontaneous reaction. So generally, you can say that, let's suppose I have this. This is your reactant, okay? And this is your product. And this is your delta H. Enthalpy change, that is negative, okay? That is negative. So, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अगर आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही, सो दिस इज मोर स्टेबल। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन दैट दिस इज मोर स्टेबल। सो इस रिएक्शन में आई कैन से energy is being released. Energy is being released. Energy is released. So the total energy is released. So that's why इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि energy is being released. So this is more stable. So this is spontaneous. So this is spontaneous. तो अब, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 100% यू कैन प्रेडिक्ट आफ्टर लुकिंग एट द रिएक्शन कि भाई एक्सोथर्मिक है तो इट्स ओके, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम कहाँ आते हैं, एंट्रोपी की तरफ। हम कहाँ आते हैं, एंट्रोपी की तरफ आते हैं। सो एंट्रोपी विल गिव यू अ बेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी रादर देन द एंथैल्पी चेंज। तो अब मैं इसको यूं लिखूं कि जो आपका डेल्टा एच है, यानी कि एंथैल्पी चेंज
gives incomplete information regarding spontaneity. ओके, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा बेटा, एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा. सो टू डील with this problem, entropy is introduced. सो एंट्रोपी आपको बताएगा बेसिकली एंट्रोपी क्या है. बेसिकली एंट्रोपी is a measure of disorderness of a system. If a system is more disordered, means this is more stable. उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है बेटा कि कि एंट्रोपी को आप एक और तरीके से भी पहले डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? Another way, or you can define entropy, that कि entropy is the distribution of energy, the distribution of energy in number of ways. थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी वर्डिंग है, बट अभी समझ आ जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम. सो जस्ट फील फ्री, अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा. लेट्स सपोज कि मैंने आपको कहा कि दिस इज द सॉलिड. लेट्स सपोज दिस इज अ सॉलिड. जस्ट इमेजिन, मेरे पास कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं. सो दिस इज सॉलिड. ऑन द अदर हैंड आई हैव दिस. They are ordered, they are disordered. But remember, इसमें एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसलिए तो एंट्रोपी इसकी हायर है. लेकिन दिस इज स्टेबल. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो याद रखना बेटा, जब एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई तो याद रखिएगा, तो फिर वो चीज स्पॉन्टेनियस होगी. तो अगर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑल द थिंग्स वांट स्टेबिलिटी. हम क्या कहते थे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते थे ओ लेवल्स में या एएस में, कि octet rule, every element must have 8 electrons in its outer shell. तो वो अपने 8 electrons को पूरा करता था. whether element is going to lose electron, whether element is going to gain electron, लेकिन उसको वो काम करना था. अल्टीमेटली उसको वो काम करना था. Sir, 100 and yes. sir, how do you know that energy is distributed in disordered बेटा देखो, अभी particles? एंट्रोपी एनर्जी यहाँ पर कन्फाइंड है. एनर्जी यहाँ पर कन्फाइंड है. अब पार्टिकल दूर दूर हो गए,
पार्टिकल दूर दूर हो गई है, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। चीजें क्या करती हैं, अपने फ्रीली मूव करने की कोशिश करती है ना। आपने गैस के पार्टिकल्स को कंटेनर में बंद कर दिया, आपने गैस के पार्टिकल्स को कंटेनर में बंद कर दिया, अब वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना स्पेस नहीं है। आप उनको स्पेस प्रोवाइड कर दो, फिर देखो कंटेनर तो क्या, गैस क्या करेगी उसको, अगर एक भी होल नजर आ गया गैस को, अगर एक भी उसे होल नजर आ गया तो वो वहां से निकलेगी भाई। वो क्योंकि वो फ्रीली मूव करेगा, उस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखिएगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज इफ इफ द रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। याद रखिएगा, एंड अगर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है तो रिमेंबर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। So ultimately you can identify, you can recognize whether the reaction is spontaneous or not. Just look at entropy. If the entropy is increasing, means the reaction is spontaneous. And if the entropy is decreasing, means the reaction is non-spontaneous. So ये entropy जो है is a better way to predict whether the reaction is spontaneous or not, rather than the enthalpy change. तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, एंट्रोपी को डिस्कस किया। दिस इज द रीजन कि वी आर डिस्कसिंग एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, पहले तो आप ये याद रखें। सर एंड यस, अबीरा बोलो। सर, तो बेसिकली हमें एंट्रोपी से ये पता चलता है कि रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्टिवेशन एनर्जी तो आप ना कहो, बस आप हाँ ये कह लो कि अगर कि वो रिएक्शन जो है ऑन इट्स ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कोई आपको ऐसा है कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप उसका एंट्रोपी देख लो, एंट्रोपी आप उसका कैलकुलेट कर लो। अगर एंट्रोपी उसका पॉजिटिव आ रहा है तो आप कह सकते हो कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बेसिकली आपको प्रिडिक्ट करना है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको कहूँ तो इसके जो है वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर वो आपको कहेगा आप प्रिडिक्ट करो वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, और वो आपको एंट्रोपी वैल्यूज देगा, तो उसकी उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उसकी एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सी बात है। ओके। यस सर। अच्छा, एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, तो याद रखना, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये एंट्रोपी का यूनिट है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ओके। अच्छा जी, अब एंट्रोपी हमारे पास दो तरह की होती है, याद रखिएगा ये बात। यानी आप यूं समझ लीजिए कि एंट्रोपी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कैसे? लेट्स सपोज दिस इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा जी, ओके ओके। अब बताओ सिस्टम क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कप ऑफ टी है, कुछ ऐसे करके, ऐसे, देन ऐसे, और फिर कुछ ऐसे। बस गुजारा करना बेटा, ड्राइंग ऐसी है मेरी। अच्छा जी, ये आपके पास टी है, ग्रीन कलर की है, सही है, ग्रीन सर टी आप है ये। एक्सप्लेन करेंगे आपने यूनिवर्स क्या लिखा है ये? यूनिवर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है बेटा, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है।
अब मैं दोनों की एंट्रोपी आपको बताऊंगा, सिस्टम की भी एंट्रोपी होती है और सराउंडिंग की भी एंट्रोपी होती है। कैसे, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके पास टी है, दैट इज योर सिस्टम, और ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है, ये जो वॉल ऑफ कप है, दैट इज योर सराउंडिंग। और ऑल्सो अगर आप इसको किसी रूम में रखते हैं कप को, लेट सपोज दिस इज योर रूम, तो ये रूम भी आपका सराउंडिंग हो सकता है। तो रूम भी आपका क्या हो सकता है, सराउंडिंग हो सकता है। यानी रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब होता क्या है, आपको पता है ना, आपको पता है ना बेटा, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी का एक्सचेंज होता है कुछ इस तरह से। एनर्जी एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अरे उससे बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बता दूं बात। भाई आपकी गरम गरम चाय है, चाय से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। जब सराउंडिंग में जाएगी तो बेटा सराउंडिंग का तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और आपको तो सबको पता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सो द पार्टिकल्स विल मूव फास्टर, और व्हेन द पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो they will be further away from each other. When they will be further away from each other, in other words, the randomness will increase. If the randomness will increase, so means the entropy will increase. कैसा? So सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, रिमेंबर। इसलिए हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द टोटल एंट्रोपी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द टोटल एंट्रोपी। हम ये नहीं कहते कि जस्ट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, वी से टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एंट्रोपी मींस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। अब मैं दोनों को बताऊंगा कि दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं दोनों का बताऊंगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। बहुत इजी है, सो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सो सी दिस, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, that is equal to इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं नीचे ताकि आपको क्लियर हो जाए। डेल्टा एस is equal to sum of all the entropies in the product side minus sum of all the entropies in reactant side. In short, this is product minus reactant. In short, this is product minus reactant. Basically, this is Pakistan Railway. जो लोग बाहर गए, मुझे नहीं पता वहां पे क्या सिस्टम है। बुलेट ट्रेन है वहां पे, हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन है। ओके जी। सो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है और हम बड़े मजे से इसे यूज करते हैं बेटा। कैसे? एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन इसके कैसे हमें करने होते हैं। सो जस्ट सी दिस कि एंट्रोपी का क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सो सी दिस,
ये देखिएगा बेटा जरा, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। ओके, और आपको डाटा दिया हुआ है, इसकी भी एंट्रोपी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, हर एक की एंट्रोपी आपको गिवन है। तो निकालो जरा। डेल्टा एस वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड पर दो चीजें हैं, एक आयरन है, सो 2 into आयरन की एंट्रोपी इज गिवन, दैट इज 27, प्लस फिर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, 3 into 214, दिस इज योर प्रोडक्ट, minus, then you have reactant, Fe2O3 is 90, plus CO is 198 but multiply by 3 as the coefficient is 3। बेटा जरा आंसर बताइएगा इसका क्या आ रहा है। यस, शाबाश, हाँ जी, यस, 90 आ रहा है। ओके, 12। 90 जूल्स। 393 93। हाँ, 93, ओके, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स per Kelvin per mole. This is called the entropy of system. This is called the नहीं entropy सर of सर 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 सॉरी सर system. सर सर 12 मेरा है तो सर, 12 है, 12 आ रहा है। 12 12 12 सर, गलती हो गई, 12 है, 12 है। मैंने अरे 90 की जगह यार 9 लिख दिया उस्ताद, था। ओके 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 ओके, 12, दिस इज 12 प्लस 12 आ रहा है। ओके, सो बेटा प्लस मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस, प्लस 12 मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस, और जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो साइन लिखना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंट्रोपी। ओके हो गया जी। अब आ सर जाओ जरा मतलब आप। हमें आंसर में +12 लिखना है। यस, प्लस 12 लिखना है आपने। ओके ओके, अब आइए जरा आप एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पर। अब आइए जरा आप एंट्रोपी ऑफ, बेटा मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आप एंट्रोपी को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, एक ही बता रहा हूं अभी, ऑब्वियसली पास पेपर करने दो, बाकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम। सो नाउ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, अच्छा जी, अब होता क्या है कि एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सिस्टम से जब एनर्जी आपकी निकलेगी, सिस्टम से जब आपकी एनर्जी निकलेगी, तो सराउंडिंग आपकी उस एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सराउंडिंग आपकी उस एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू heat absorbed, heat absorbed, heat absorbed divided by the temperature, टेम्परेचर इन केल्विन होगा। ओके, डिवाइड टेम्परेचर क्या होगा आपका, केल्विन होगा। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एच अपॉन टी, एक ही बात है ना, कुछ ऐसे करके। आपको पता है हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन। ओके, पता है क्यों नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, क्योंकि तो आपका जो हीट सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है बेटा, आपका जो सिस्टम है ना वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, बेसिकली आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसके उसके इसकी वजह से हमने क्या क्या लगाया है बेटा, नेगेटिव साइन लगाया। मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊं आपको, इसका सर क्वेश्चन फिर देखिएगा ये जरा बेटा। नेगेटिव साइन आपने ऊपर वाले उसमें क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि बेटा वो सिस्टम का था, वहां पे तो हम एनर्जी का एंट्रोपी का चेंज निकाल निकाल रहे हैं, मतलब एंट्रोपी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। वहां तो हम जस्ट हम नंबर की फॉर्म में बता रहे हैं आपको। वो तो कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा, लेट सपोज अगर सर नेगेटिव आया मींस एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। अगर यस बोलो बेटा। सर आप रिपीट करेंगे, नेगेटिव डेल्टा एच क्यों लिखा है? बेटा ये नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, वही तो एनर्जी ऑफ आपकी, देखो हमारा जो चाय का कप था, एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग तो एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सिस्टम से तो रिलीज हो रही है ना, सिस्टम से तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। सो ये सराउंडिंग का फॉर्मूला हो गया आपके पास। सराउंडिंग डिपेंडेंट है सर बट मुझे सिस्टम अभी भी पे। समझ नहीं आया कि आपने जो ऊपर लिखा है हीट अब्सॉर्ब अपॉन टेम्परेचर, उस पे क्यों नहीं लगाया आपने? ओके, उसी पे ही तो लगाया है, उसी पे ही तो लगाया है। अच्छा मैंने तो दूसरे स्टेप में लगा दिया, ये लो, वही तो है ओके। ये। ओके, नाउ सी दिस बेटा, क्वेश्चन देखो जरा मेरे बच्चे। H2 plus half O2 gives H2O. This is liquid. This is gas. This is gas. And the delta H is minus 286 kilojoules per mole. Calculate the entropy change of surrounding. अब इस सवाल के थॉट प्रोसेस को समझो जरा, इसका थीम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। Let's suppose this is the combustion of hydrogen. Let's suppose this is what? Combustion of hydrogen. Okay. Obvious सी बात है कि delta H is negative, which shows the reaction is exothermic, which shows exothermic system. Obviously, energy is released to the surrounding. अब वो कह रहा है कि जब सराउंडिंग में एनर्जी आ गई, अब निकालो सराउंडिंग की एंट्रोपी, अब निकालो सराउंडिंग की एंट्रोपी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, what you are going to do basically, you are going to calculate the delta S. That would be equal to negative of delta H, that is 286 divided by the temperature, divided by the temperature, that is 298 Kelvin. देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मैंने उसको केल्विन में चेंज कर लिया। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर को, दैट वाज 25, 273 करके केल्विन में चेंज कर लिया, उसको यहाँ पुट कर दिया। तो जरा आंसर बताइएगा बेटा क्या आ रहा है। यस सर फास्ट, ये सबीरा। सर सर आपको कैसे पता चला कि 25 टेम्परेचर है? बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना अबीरा, स्टैंडर्ड सर तो टेम्परेचर हमने क्या हर होता है, सवाल में 25। स्टैंडर्ड ही लिखना है। नहीं 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 नहीं, जब दिया होगा तो वही पुट करना, नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड है ये। 0.96 आंसर। 0.96 किलो जूल्स। बेटा मुझे जूल में करना है, जरा मल्टीप्लाई में 1000 कराना हम बात। ओके सर, 959.7, वो 960 यानी कर लें। 960। बेटा दिस इज योर एंट्रोपी। एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, पॉजिटिव आ रही है एंट्रोपी, पॉजिटिव आ रही है एंट्रोपी, तुम्हारे सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। व्हाई? Why? Because when the energy is exchanging between the system and surrounding, as your system was exothermic, so the energy was released to the surrounding. जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब सराउंडिंग के अंदर एनर्जी आई, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली हाई हो गई, तो उनकी रैंडमनेस भी हाई हो गई।
तो इसी वजह से आपके जो सर एंट्रोपी है सराउंडिंग की वो इंक्रीज हो गई। यस, सर मेरी वैल्यू 0.95 आ रही है। अरे इतना तो खैर हो गई यार, 95 आ रही हाँ है। 2 0.95 यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो क्या आ रही है? वाई मल्टीप्लाई या 959 959 आ रही है तो सही है, 960 हो गई ना। ओके सर मल्टीप्लाई क्यों किया है? बेटा, इसको हमने करना है जूल्स में, किलो जूल्स टू जूल्स। व्हाट इज द, सी दिस इज किलो जूल्स बेटा, दिस इज किलो जूल्स, सी दिस डेल्टा एच इज इन किलो जूल्स, ओके ओके and what is the unit of entropy? Joules per Kelvin. This is not ओके kilo, this is joule. Okay, okay. So beta, we can predict whether the reaction is spontaneous or not. Just calculate the entropy change. Just calculate the entropy change. And also, beta, total entropy, delta S total, would be equal to delta S of system plus delta S of surrounding. So remember, this is the relationship. Okay हो गया जी? अच्छा. Now, the next thing is कि we can predict the सर entropy change. Yes, Abira? सर आप वो दोबारा बता देंगे कि वो साइन से क्या होगा कि अगर एंट्रोपी पॉजिटिव आई तो क्या होगा, नेगेटिव आई तो क्या होगा? बेटा entropy अगर positive आएगी, so it's mean that the reaction is spontaneous. इसको मैं लिख देता हूँ बेटा. If delta S is positive, तो reaction is spontaneous. और if entropy is negative, the reaction is non-spontaneous. Okay. अच्छा, let's suppose without calculation, बेटा without calculation, क्या हम predict कर सकते हैं whether the entropy is increasing or decreasing? Yes, इरफा, हम्माद, हन्नान, ईमान, युसरा, अशमाल, अबीरा. सर एंथैल्पी चेंज के थ्रू। No. सर फिर से सवाल पूछेगा। Yes, without calculation, can we predict the entropy? सर जी Whether the आई entropy is थिंक decreasing अगर or सॉलिड increasing? से लिक्विड जा रहा होगा तो फिर ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, अगर सॉलिड लाइक सर अगर सॉलिड से गैस जा रहा होगा तो। सर और अगर अगर लिक्विड सर अरे लिक्विड से सॉलिड जा इरफा, रहा हो तो फिर वो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। exactly. Without calculation, we can also predict. सर नंबर सर ऑफ मोल से भी होता है ना। सर उल्टा नहीं हाँ होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। सर लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड में नहीं होनी चाहिए एंट्रोपी इंक्रीज, क्योंकि सिस्टम, ओ नेवर माइंड सर, समझ में आ गई, ऑर्डर हो जाएगा वो। हाँ सही जी, सही है। हाँ जी, ऐसे ही है। We can also predict entropy. अब देखिएगा जरा, this is solid, this is liquid, this is gas. Let's suppose अगर यूं जा रहा है तो एंट्रोपी, यानी कि मैं साइन लिख देता हूँ यार, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। और अगर लिक्विड से गैस पे जा रहा है तो अगेन द डेल्टा एस इज पॉजिटिव। बट बट अगर वो वापिस आ रहा है कुछ ऐसे, सो द डेल्टा एस इज नेगेटिव। इसी तरह से गैस टू लिक्विड आ रहा है
again the delta S is negative. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बेटा मैंने। इसको एक क्वेश्चन से जरा समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कुछ इस तरह से। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल है यार, ये गुड क्वेश्चन यार। बेटा पढ़िएगा जरा पार्ट ए से। शाबाश। यस। यार वेट। चलो जी। यस बताइएगा बेटा, जरा पढ़ो जरा इसको, क्वेश्चन को। यस। Okay, sir. State and explain whether the following processes will lead to an increase or decrease in entropy. The reaction of magnesium with hydrochloric acid, entropy change and explanation. Solid potassium chloride dissolving in water, entropy change explanation. Steam condensing to water, entropy change explanation. क्या कहते हो? एंट्रोपी सर चेंज इंक्रीज पहला होना वाला तो चाहिए। पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज होगा क्यों बेटा अबीरा, क्यों? सर, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid, सर नो this is चेंज। aqueous, this is solid। देखते हैं, this is MgCl2 salt, salt is aqueous, ओह अच्छा, so test। and hydrogen gas, and hydrogen is gas। अब नोट करो बेटा, नोट करने की बात है। गैस गैस बन रही है, गैस बन रही है, और जब गैस बनती है तो अल्टीमेटली आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है, तो मुझे तो यहाँ इंक्रीज लिखना चाहिए। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है आपकी, तो ये तो पक्की बात है, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव आ रहा है, नो डाउट, 110%। हाँ, रीजन क्या दूं मैं अब इसका? रीजन क्या दूं? तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। गैसेस की एंट्रोपी वैसे ही ज्यादा होती है, पार्टिकल्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं। यस, नेक्स्ट कौन बताएगा बेटा? सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्विंग इन वाटर। यस। हाँ जी, बहुत इजी, एंट्रोपी इजी एकदम। सर ये भी इंक्रीज होगा। सर इंक्रीज हो रहा है। सॉलिड टू लिक्विड से स्टेट जा क्यों? रहा है। अरे हाँ सर क्या बात है भाई, क्या पोटेशियम बात। हाइड्रोक्साइड एक्वस है ना, तो इसलिए। एग्जैक्टली। एक्वस के आयंस आर फ्री टू मूव। एक्वस के आयंस आर फ्री टू मूव। तो मैं इसका रीजन लिखूंगा के के प्लस एक्वस, Cl minus aqueous ions are free to move in a solution. Initially, I had potassium chloride solid. In solid, as you know, this is an ionic lattice structure. So the ions are fixed, held together at a fixed position with a very strong electrostatic force of attraction. When you have dissolved ionic compound in water, so the ions are dissociated and now they are free to move. So that's why entropy will be positive. Yes. Part 3. Yes, part 3. एंट्रोपी डिक्रीज ताकि गैस से लिक्विड जा रहा है। Oh, exactly. Negative, 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 negative means the entropy is going to decrease. क्योंकि स्टीम कंडेंस हो रही है बेटा। स्टीम वॉज अ गैस। स्टीम वॉज अ गैस। तो मैं अगर इसको यूं लिखूं बेटा, H2O gas converted into H2O liquid. सो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे, मोर रैंडम। ये मोर रैंडम था।
and then after condensation, this is a less random. Ultimately, the entropy is going to decrease. तो आप क्या कहेंगे बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? गैस is decreased या गैस converted into liquid. ओके जी, सेट है यहां तक? Okay, sir. यस। तो बेटा ये है एंट्रोपी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको, कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया, आपने प्रेडिक्ट कर लिया whether the reaction is spontaneous or not. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां पर आपको जस्ट साइन साइन लगाना है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जस्ट यू हैव टू पुट द साइन ऑफ एंट्रोपी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसमें आपको इंशाल्लाह इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। वेरी इजी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक